محترم نور امروی صاحب جو 14 اگست کے مشاعرے میں ایک بات کر رہے تھے کہ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی تلخی حالات میں آتی ہے اس کی وجہ سیاستدان ہوتے ہیں، اور جب بھی اس کو ڈیفیوز کوئی کرتا ہے، کم کرتا ہے، وہ شاعر ادیب ہی ہوتا ہے. تو ہم اس کاوش کو بالکل اسی طرح چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں اب مشاعرے کے آغاز کی طرف چلنے سے پہلے سب سے پہلے آج کے جو ہمارے صدر محفل اور مہمان خصوصی کے لیے 2 قطعات میں نے لکھے ہیں وہ ان کی نظر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو ہم ان کی نشست پر بلائیں گے. سب سے پہلے جو صدر محفل ہیں آج کے، ان کی توصیف کیا بھلا میں کروں، بے پناہ خوبیوں کے حامل ہیں، آج کی کرسی صدارت کو خالد خواجہ ہی صدر محفل ہے. جناب خالد خواجہ ہمارے بڑے ہر دل عزیز اور معروف شاعر، میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور صدر محفل کی نشست پر آ جائیں. اور جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں، امن و الفت کے ہر پیغمبر کو دوستی کا سفیر کہتے ہیں، آج بھی آپ کی محبت کے ہم تو خود کو اسیر کہتے ہیں. میری گزارش ہوگی سید شکیل غوث صاحب سے، جو کہ انڈیا کے شہر رامپور کی عزت ہیں اور بڑے معروف شاعر ہیں، وہ مہمان خصوصی کی نشست پر متوقع ہوں. حضرات گرامی، اب اس کے بعد میں معزز مہمانوں کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہم آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں، اور ناصر خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ الہیہ میں آیات قرآنی کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کی کثافت کو دور فرمائیں. جناب ناصر خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. یہ تھے ناصر حسین جو کہ بارگاہ الہیہ میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. حضرات گرامی، اب جو ہمارے یہاں کے مقامی شاعر ہیں ان کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے میرے سامنے جو نام ہے وہ ہے کہ ہیں وہ تقلید میں بھی متحرک، مترنم سلام کہتی ہیں، ہے تخلص کلام کی ہی طرح خوبصورت کلام کہتی ہے. میری گزارش ہے ترنم شبیر سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں. ترنم شبیر. بہت ہی اچانک حملہ تھا. اجازت میں بس 2 شعر سنا دیتی ہوں. ترنم سے. اس کا بھی نام تھا فسانے، جس نے رسوا کیا زمانے میں، جس نے رسوا کیا زمانے میں، جس کو اپنا سمجھ رہے تھے ہم، جس کو اپنا سمجھ رہے تھے ہم، سب سے آگے تھا گھر جلانے، سب سے آگے جس کو اپنا سمجھ رہے تھے
मसरूफ हैं कमाने में। नस्ल नौ की हो तरबियत कैसे, हम तो मसरूफ हैं कमाने में, जिसने रुसवा किया ये थी मोहतरमा तरन्नुम शबीर साहिबा। इसके बाद जो मेरे सामने नाम है वो मेरा बड़ा पसंदीदा नाम है, तो मैं उनको बुलाने के लिए जो कथा लिखा है वो है कि उनको पहली बार सुना तो दिल चाहा सुनते जाएं, वाह वाह कहते जाएं और सर को बस धुनते जाएं। मेरी गुजारिश है मोहतरमा राना हुसैन से, राना नौशाद हुसैन, कि वो आएँ और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। मोहतरमा राना हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। एक गज़ल के 2-3 अशआर और फिर उसके बाद एक कोई सिसकता रहा और ये शाम गुजरी है, कोई सिसकता रहा और ये शाम गुजरी है, ये वारदात बसत एहतराम गुजरी है। कोई सिसकता रहा और ये शाम गुजरी है, ये वारदात बसत एहतराम गुजरी है। मेरे वजूद से क्या थी चमन में बेचैनी, मेरे वजूद से क्या थी चमन में बेचैनी, कि अब ये बाद सबा खुश खराम गुजरी है। जो बेखुदी में कही मैंने अपने दिल की बात, जो बेखुदी में कही मैंने अपने दिल की बात, वही ज़बान ज़दे ख़ास व आम गुजरी है। वो आएगा किसी पल में तुम इंतज़ार करो, वो आएगा किसी पल में तुम इंतज़ार करो, हमारे पास से ये कह के शाम गुजरी है। बहुत शुक्रिया। वो आएगा किसी पल में तुम इंतज़ार करो, हमारे पास से ये कह के शाम गुजरी है। हर एक रात तेरी याद में गुजारी है, हर एक रात तेरी याद में गुजारी है, सो नींद हम पे मुसलसल हराम गुजरी है। हर एक रात तेरी याद में गुजारी है, सो नींद हम पे मुसलसल हराम गुजरी है। अब मैं पूरी गज़ल सुनाऊंगी। अब तो अपने नहीं रहे अपने, अब तो अपने नहीं रहे अपने, रेजा रेजा बिखर गए सपने। दिल को एक बेकली सी रहती है, दिल को एक बेकली सी रहती है, रात अपनी है और न दिन अपने। अश्क आँखों में ज़ख्म सीने में, अश्क आँखों में ज़ख्म सीने में, चाहते हैं संभाल कर रखने। हमको ताबीर ख्वाब मिल न सकी, हमको ताबीर ख्वाब मिल न सकी, सपने आखिर को रह गए सपने। फैसला कौन फिर करेगा यहाँ, फैसला कौन फिर करेगा यहाँ, जब ज़मीरों पे बोझ हों अपने। फैसला कौन फिर करेगा यहाँ, जब ज़मीरों पे बोझ हों अपने। दिल से जाता है एतबार वफा, दिल से जाता है एतबार वफा, छुप के करते हैं वार जब अपने। अब तो ये याद भी नहीं है हमें, अब तो ये याद भी नहीं है हमें, तुमसे बिछड़े हुए हैं दिन कितने। शुक्रिया। ये थी मोहतरमा राना नौशाद हुसैन साहिबा। हज़रात गिरामी, अब मैं
जिस शख्सियत की तरफ जा रहा हूँ, पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि मैं उस दिन 14 अगस्त को उनको नहीं बुला सका, मेरे जहन से किसी वजह से उनका नाम महव हो गया। एनी हाउ, आज हम उन्हें सुनते हैं। ज़िक्र माओं का जो छिड़ा है कभी, ज़िक्र माओं का जो छिड़ा है कभी, उसकी आँखों को भीगते देखा, धरती माँ को मिले दुखों पर भी फ़िक्र बासित को झेलते देखा। जनाब बासित जलीली साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने कलाम को आपके सामने पेश फरमाएँ। जनाब बासित जलीली आज के मेज़बान भी हैं। आज की जो नज़्म है इस पर मैंने अहले करम को मुखातिब किया, तो जनाब सदर की इजाज़त से तवज्जो का तलबगार हूँ। ऐ इस पुराशोभ सदी के सुखन बरो, ऐ इस पुराशोभ सदी के सुखन बरो, जब भी इस दौर की तारीख लिखी जाएगी सच लिखा जाएगा। जालिम को जालिम, कातिल को कातिल ही लिखा जाएगा, फिर सब कुछ आया हो जाएगा। ये भी लिखेगा मौर्रिख कल का कि भूख से बिलबिलाते बच्चे माँओं की गोदों में सहमे हुए, अंधी गोलियों की बौछार से शहीद मेरे जवान, एक एक घर से निकलते कई जनाजे, हर तरफ आहो बुका, 400 चीखो पुकार, मट्टी और धूल में अटे लाशे, लहू में डूबे बिखरे इंसानी अज़ा, सरों पे खाक लिए दर बदर खाक बसर, बेसहारा मेरी माएँ बहनें, मेरे हुसैन की रीत निभाते बूढ़े लरसते कदमों से, नातवा कंधों पे जवां लाशें उठाए बेकसो मजबूर, अपने ही खून से तारीख लिखते शहीद, किस तरह असबियत का हुए थे शिकार। मजहबी मुनाफरत ने तकसीम किया था उनको, हर एक की मस्जिद थी अलग, हर एक का खुदा था जुदा। और ये भी लिखेगा, हर एक का खुदा था जुदा। और ये भी लिखेगा मौर्रिख कल का कि शब स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, कि शब स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, कोई आवाज़ भी जुल्म के खिलाफ उठ न सकी, स्याही खुश्क हुई और कलम हुए खामोश, के लिखने वालों ने शाहों की नौकरी कर ली। और ये भी लिखेगा मौर्रिख कल का कि शब स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, कोई आवाज़ भी जुल्म के खिलाफ उठ न सकी, स्याही खुश्क हुई और कलम हुए खामोश, के लिखने वालों ने शाहों की नौकरी कर ली। ऐ मेरे शायर, ऐ मेरे अदीब, अभी भी वक्त है। ऐ मेरे शायर, ऐ मेरे अदीब, अभी भी वक्त है कि सच से दोस्ती कर ले, जो खौफ दिल में बसा है निकाल दे उसको, जो खौफ दिल में बसा है निकाल दे उसको। ये जो ज़िंदगी की घड़ी है न जाने कब बंद हो, ये जो ज़िंदगी की घड़ी है न जाने कब बंद हो। और जब तू पेश हो अपने रब के हुजूर, शर्म से सर न हो झुका और न हो रंजीदा तेरी रूह। ऐ मेरे शायर, ऐ मेरे अदीब, अभी भी वक्त है कि सच से दोस्ती कर ले। बहुत ही शानदार और आज के मौजू से बिल्कुल उसको छूती हुई बहुत खूबसूरत आपकी नज़्म। हज़रात गिरामी, इसके बाद जो नाम मेरे सामने है उनके मुताल्लिक मैंने लिखा है कि हरदम कोशा ही रहता है, ऐसा दोस्त मिसाली है, तालियों की झुरमट में यारो आता यार जलाली है। तो जनाब काजी सलमान जलाली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, 2-4 कतार अब सुना दें। तो इनकी खूबी सबसे ये है कि ये वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमेशा कलाम मुख्तसर सा सुनाते हैं ताकि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुश्तरका तौर पर तमाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाइयों को एक दफ़ा फिर आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हिंदुस्तान। अल्लाह करे इसी तरह मोहब्बत और उससे जज्बे से रहें और तरक्की की राह पर गामजन रहें, बजाय नफ़रतों की मोहब्बतों को बदल दें। एक पुराने इंग्लिश उर्दू के चंद अशार। आई वेंट अलोन गोरे गरीबा जो एक रोज़,
At once ایک آئیڈیا دل میں یوں اروز. I went alone, گورے غریباں جو ایک روز. At once ایک آئیڈیا دل میں یوں اروز. I thought that پھول چڑھاؤں مزار پر. Someone suddenly told me کہ اے میرے نوحہ گر آہستہ برگ گل بفشاں برگ. I went alone, گورے غریباں جو ایک روز. At once ایک آئیڈیا دل میں یوں اروز. I thought that پھول چڑھاؤں مزار پر. Someone suddenly told me کہ اے میرے نوحہ گر آہستہ برگ گل بفشاں بر مزارماں. اس طرح کوچے جانا کے لگائے چکر. As if runs rapidly any auto motor. جوش وحشت میں تیرا وحشی یہی کہتا رہا come here my dear don't fear don't fear. مصرع طرح تھا کہ بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا. جب بھی کہیں محفل میں چلی بات حسن کی بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا. چلائی بیوی فجر میں اٹھو پڑھو نماز. چلائی بیوی فجر میں